May I come in, sir? Come in. Good morning, sir. Yeah, please sit down. Yeah, we are meeting for the first time. Could you briefly tell us about yourself? Yes, sir. I did my early schooling from Bikaner. Then after that, I did my 10th and 12th from Mayo College, Ajmer. Then after that, I did my graduation from Delhi University, from Deshbandhu College. I did economic honors from there. And I'm a basketball player. I played IPSC level basketball. And except for studying, I also manage my agriculture business. Mayo College. Can you tell us something about Lord Mayo? Yes, sir. He was the 6th Viceroy of India. And he was the he was the first person who carried out census in 1871. Then during his tenure only Indian Evidence Act also came into being, and so he led to establishment of many departments such as revenue, agriculture, and also led to immense advancement of rails and roads infrastructure, sir, during his time. So how did he establish this school? So it was a suggestion of Mr. KFW Walter, who was the chiefman of Bharatpur Regency. He came up with an idea to have a different school for royal family kids, so that segregation can be there between the ordinary people and the royal family people, sir. Do you think it was right? No, sir, it wasn't right, because if you don't know what's going on with the people around you in your kingdom, that won't be a right, because you won't be sensitive towards them, and that won't turn out to be fruitful for the whole kingdom, sir, at that time, sir. That is what I think. There was another lord by the name of Lord Macaulay. Yes, sir. Who established the education policy in India. Yes, sir. Much criticized. Why? So because his policy was much more focused on trickle down theory, and also, sir, his education system was more oriented towards English medium and not towards vernacular medium. That is what I remember, sir. चलिए आप ये बताएं. You are also applying for RAS and IAS and CDS. Yes, sir. Okay. Now, if you do get selected in the RAS, yes, sir, would you continue giving the IAS exams also? So every person should try to be forward looking in his life. So I would like to try for civil services. Yes, sir. Good. But you get selected into RAS. Yes, sir. We train you. We are spending money on you. Yes. Then you get selected into IAS. Yes. You shift over and you get posted at South India. I lose a good person. I lose money. So if I want to run the state as a corporate, is it okay? So thing is, if I'll be an IAS, with my experience that I gained over here, I could be more fruitful in the All India services, sir. But I know there had been an expenditure on me to make me a good demographic dividend to be part of the Rasan Administrative Service. But sir, if I would be forward looking, so then I would be going for that. Ma'am, please. You did your schooling from Mayo College? Yes, ma'am. Is there any specific reason behind keeping the name college when it's a school? Ma'am, from the beginning only it was named as Mayo College. There was, as far as I know, it was known as Mayo College only from beginning only. Okay, never mind. You did your college education from DU, yes, and not from RU. Any particular reason do you think the studies which are carried out in RU are worse than DU, or DU is better than RU? No, ma'am. There won't be any difference between the education system over there and over here. But what I'd heard from RU students, that there are person doesn't need to be have a good attendance to appear in exams over here. But in Delhi University, you need to have a particular percentage of attendance in your school, and also teachers are quite disciplined about their classes. That is what I find it the difference between RU and DU. So what do you think can be the reason behind such nature of teachers? Sorry, ma'am. I think it must be laxity on their part, ma'am. Okay. Supposedly you are placed in education department. Yes, ma'am. And you get an opportunity to improve the department and the policies. Yes. What do you think you can give in this? Ma'am, first of all, on the teachers front, I would like to introduce the biometric system,
so that attendance it's placed every day, and teachers are more particular about conducting their classes. And in every 6 months there will be a review from the student sides if the teacher has taught them quality education, and if the teacher was present for their classes. That both these things I could include into the curriculum. It is generally observed that students from Rajasthan are not placed in higher premier institutes. Yes. Any reason behind that? Ma'am, foremost reason is our literacy is quite down, and in women literacy we are the second lowest after Bihar. That is the main reason that our students are not getting enrolled into premier institutes. Don't you think there is lack of awareness in schools and colleges? Students are Yes, not ma'am. given Yes, ma'am. such kind of information. Yes, ma'am. You mentioned the right thing, ma'am. People have less exposure to premier institute students or professors, so they don't get the perfect line to get aligned to some professional premier institute degrees. Since you just mentioned that you are also working in your agriculture related Yes, business, so can you point out some schemes that are being implemented by Rajasthan government in this particular Yes, field? ma'am. There is a scheme known as Mukhyamantri Beej Swavlamban Yojana, in which the seeds are produced in the agriculture fields only, and which is bringing down the cost of production, ma'am. Then there are seed mini kits, then nutrient kits are also available. And in the present scenario, due to millet year, 90% grant has been given if someone starts producing millet related agriculture processing farm. That is also there, ma'am. And 100 lakh rupees and or 50% subsidy, capital subsidy has been given for agro processing industries. These are the Okay. schemes. ठीक है, अगर आपको हम सिलेक्ट करते हैं तो आप क्या एक्स्ट्रा लेके आएंगे डिपार्टमेंट में? मैम एक्स्ट्रा तो मैम मैं यही कोशिश करूंगा कि जो टाइम बाउंडेड क्वालिटी ड्रिवन जो मैम वर्क्स का एग्जिबिट होने चाहिए लोगों से, वो मैं कोशिश करूंगा मैम. ठीक है, वन ऑफ माय लास्ट क्वेश्चन. यस मैम. टेल मी अ सिंगल फैक्ट that is very lesser known about badminton, basketball. About basketball, ma'am. Yeah. Ma'am, Kareem Abdul Jabbar was the highest scorer, and recently LeBron James overcome him by scoring a 3-pointer in a NBA Finals match, ma'am. That is very much lesser known to people now. Thank you, sir. अगर आप आरएस नहीं बनते हो Yes, sir. तो आप क्या करोगे? सर मैं फिर से ट्राई करूंगा सर, और जो मेरी प्राथमिकता है मैं उसको प्राप्त करने की कोशिश करूंगा, और सर मैं अपना जो एग्रीकल्चर बिजनेस है उसको भी सर साथ में रन करूंगा. रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? सर मिस्टर शक्तिकांत दास. राजस्थान में धरोहर संरक्षण के लिए, ऐतिहासिक धरोहर संरक्षण के लिए क्या कोशिशें की जा रही है? सर अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने जैसे रूरल टूरिज्म प्रमोट किया, जिसके अंदर जो हवेलीज है इनके संग्रहण के लिए हेल्प किया जाएगा, और अभी टूरिज्म को अलग से सर स्टेटस भी दिया गया है. इसके लिए कोई इन्होंने इंस्टीट्यूशन फॉर्म किया? सर धरोहर प्राधिकरण करके एक डिपार्टमेंट. क्या जाति हमारे सिस्टम में एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रही है? सर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पूरे सिस्टम में सर जाति को अपन को एक सर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए. जाति एक सिस्टम है जिसमें अगर कोई भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं. जाति जो है उसके बारे में हम फिर से बात करेंगे. अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या हमारे पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम में कास्ट जो है यस सर. वो एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करती है? सर अभी जैसे कि चुनाव पास में आ रहे हैं, अभी विभिन्न जो जातियां हैं वो अपने महासम्मेलन जयपुर के अंदर आयोजित कर रही है, जिसके अंदर वो अपने आरक्षण को बढ़ाने के लिए बोल रही है. आप अगर आज कल को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आ जाते हैं, यस सर, और तब आप मीडिया का सामना कैसे करेंगे? मीडिया के दबाव का सामना कैसे करेंगे? सर जैसे कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन का जब पार्ट बनाया जाएगा तो हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन की नीतियां हैं हमेशा उनके सपोर्ट में ही बोलना पड़ेगा, और सर जो तथ्य होंगे उन्हीं से लोगों को अवगत कराना होगा. और इसके अलावा जो एकदम मूलभूत सूचनाएं हैं और जो सूचनाएं गुप्त रखनी है उनको अपने तक ही कम. नोटबंदी कौन करता है?
सर नोटबंदी सर अभी आरबीआई ने करी सर। ठीक है, इसकी घोषणा फिर प्रधानमंत्री ने क्यों की थी 2016? सर उससे सर गवर्नर्स की और जो पॉलिटिकल पॉलिटिशियंस है सर, इनकी सर मीटिंग हुई थी, उसमें सर इसका प्रस्ताव पास हुआ था, उसके बाद प्रधानमंत्री ने की। लोक सेवा गारंटी अधिनियम, यस सर। ये क्या है? सर राजस्थान पहला राज्य है सर जिसने लोक सेवा गारंटी नियम लागू किया है सर। इसके अंदर सर अगर कोई भी लोक सेवाओं के द्वारा अगर किसी को भी कोई दिक्कत होती है या उसकी परेशानियों को एड्रेस नहीं किया जाता है, तो उसके लिए वो सर उसके लिए फर्स्ट अपीलेट सिस्टम, सेकंड अपीलेट सिस्टम का क्रिएशन हुआ है, ताकि जो सर्विसेज हैं उनको बेस्ट तरीके से मिल सके। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई, इस पे कोई कमीशन बना, आपको याद है? सर जितना मुझे पता है सर, उनका एक प्लेन क्रैश के अंदर डेथ हुई थी सर, और सर कमीशन का नाम मुझे सर। ठीक है, राजस्थान के राजाओं का और ब्रिटिश शासन का क्या संबंध था? सर राजस्थान के राजाओं का और ब्रिटिश शासन का संबंध अच्छा ही था सर, क्योंकि जैसे अगर हम बीकानेर की बात करें तो महाराजा गंगा सिंह जी ने सबसे पहले टेक्निकल रिलेशन बताइए, फिर उसके बाद में। सर टेक्निकल रिलेशन तो सर जैसे जो राजा महाराजा थे उनका जो अपने सरदार और थे उनसे जो रिलेशन थे वो डाउनग्रेड हो गया था। एजेंट टू गवर्नर जनरल क्या काम करते थे यहाँ पे? सर वो पॉलिसी मेकिंग का काम करते थे। इसके अलावा जो भी मिलिट्री का मूवमेंट होता था छावनियों के अंदर। राजस्थान की कोई 3 प्रसिद्ध बावड़ी? सर चांद बावड़ी है सर, आभानेरी की बावड़ी है सर। सर अभी 2 याद करता हूँ सर। बीकानेर में नेशनल लेवल के रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं क्या? यस सर है। कौन कौन से? सर एक नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल है सर। इसके अलावा सर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर है सर। तो इन्होंने कोई रिसेंटली कोई सिग्निफिकेंट कोई डिस्कवरी या इन्वेंशन कुछ किया है क्या? हाँ सर, जैसे जो एनआरसीसी है सर, उन्होंने कोर्स ग्रेन जो अपना मोटा अनाज होता है उसके साथ ऊँटनी के दूध को मिला के एक नए प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स तैयार करें। और इसके अलावा सर जो एरिड हॉर्टिकल्चर का है सर, उन्होंने मरु शोभा करके खेजड़ी की वैरायटी इंट्रोड्यूस करी है, जो जिससे जो फार्मर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और उनकी फार्मर इनकम भी इंक्रीज होगी सर। अच्छा, और इसके अलावा राजस्थान में कोई और नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स और रिसर्च इंस्टीट्यूट सर कोई 4 के नाम बता दो। सर एक तो सर दुर्गापुरा केंद्र है सर, दुर्गापुरा अनुसंधान केंद्र कृषि का है सर। अच्छा सर, इसके अलावा काजरी इंस्टीट्यूट है सर जो जोधपुर में है सर। ठीक है। और सर इसके अलावा सर एक एक्वानाइन सेंटर है, अश्व अनुसंधान सेंटर है जो बीकानेर में स्थित है सर। और सर इसके अलावा सर अभी मैं 3 याद करता हूँ। अच्छा ठीक है। एंजल टैक्स क्यों चर्चाओं में है इन दिनों? सर एंजल टैक्स अब सर एक तरीके से इम्पोज करना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट सर। जब अनलिस्टेड कंपनीज होती है शेयर मार्केट के अंदर, वो सर जिस तरीके से रेवेन्यू को रेज करती है उसके ऊपर टैक्सिंग सिस्टम के ऊपर चल रहा है, जिसका जो नए स्टार्टअप्स हैं वो विरोध भी कर रहे हैं सर। अच्छा, आपको क्या लगता है एंजल टैक्स पे कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सर एंजल टैक्स होना चाहिए सर स्टार्टअप्स के ऊपर, क्योंकि इन दिनों स्टार्टअप्स की धीरे धीरे पोजीशन सुधर रही है। बट सर वो इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि जो स्टार्टअप्स लाने वाले हैं लोग हैं वो हतोत्साहित हो जाए सर। अच्छा, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यस सर, ये 2 टर्म्स चलती है। यस सर, है ना? तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू में आप क्या देखते हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में बैलेंस है कि नहीं है? सर बैलेंस है सर। जैसे कि ग्रोथ के अंदर सर हम देखते हैं कि किसी भी देश की जो आर्थिक स्थिति है वो किस तरीके से, जैसे उसकी जीडीपी पर कैपिटा इनकम कैसे इंक्रीज हो रही है सर। और सर डेवलपमेंट के अंदर एजुकेशन, न्यूट्रिशन, इन सब के ऊपर भी देखा जाता है। और सर हम जैसे कि जो हमारी ग्रोथ रेट है वो अराउंड 7% रहने का अनुमान है आने वाले समय में। और सर हमारे यहाँ पे जैसे पीडीएस स्कीम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, मिड डे मील है, जो कि सर 1956 में केटी कामनाथ और आर रामाराव के द्वारा चालू की गई थी। तो वो लोगों का सर फायदा ही कर रही है। नहीं, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो यही पूछना चाह रहा हूँ आपको कि जिस तरह से ग्रोथ आ रही है, ग्रोथ रेट आप बता रहे हो 7%, 8%, वट एवर द फिगर। यस सर। तो उस ग्रोथ के कोरस्पॉन्डिंग डेवलपमेंट हुआ है क्या इंडिया में? मेरा क्वेश्चन एक्चुअली है सर सब
इसमें सर एक जैसे कमी रही है कि इन दिनों जैसे हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है सर, उसके साथ ग्रोथ कम हुई है और वो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, चाहे वो स्किल्ड हो चाहे नॉन स्किल्ड हो। जबकि हमारे यहाँ पे जो ग्रोथ हुई है वो सर्विस सेक्टर में हुई है, जो स्किल्ड लेबर फोर्स को ही तवज्जो देता है सर। तो थोड़ा सा सब बैलेंस कम रहा है, लेकिन इन दिनों गवर्नमेंट की स्कीम्स है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, इनके थ्रू लोगों को अपलिफ्टमेंट करने और उनको स्किल्ड करने का काम चल रहा है सर। अच्छा, ये अपने जो अभी ये चल रहे हैं महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं, यस सर। इनका कितना रैशनल लगता है आपको? यूं मतलब कितने ये प्रोडक्टिव है और कितना इनमें मिसयूज है? सर सर ये एक बैलेंस बोलूंगा सर मैं इसके अंदर। जैसे कि सर स्वास्थ्य बीमा योजना हर किसी को चाहिए, कोई भी सर सामान्य नागरिक भी हो, बड़े से बड़ा अफसर हो, उनको चाहिए सर। तो महंगाई राहत कैंप वहां पे ठीक है, लेकिन सर जैसे कि पहले से ही एग्रीकल्चर में और सर डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए यूनिट्स फ्री दी जा रही है, जिससे हमारा जो आर्थिक बोझ है वो बढ़ रहा है। जैसे कि राजस्थान का 39.3% है डेट जीडीपी रेशो, तो सर वो बढ़ भी रहा है। तो हमें मेरिट और नॉन मेरिट गुड्स में डिफरेंशिएट करके इसको और इफेक्टिवली सर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मान लो मेरे को लेना है स्वास्थ्य बीमा, यस सर। तो मैं महंगाई राहत कैंप में जाऊंगा तो मेरे को मिल जाएगा? सर पहले आप ई मित्र पे जाके रजिस्ट्रेशन करवाओगे सर, उसके बाद वो आपको कार्ड देंगे, उसके 4-5 दिन बाद जाके आप वहां पे रजिस्टर करवा सकते हैं राहत कैंप के। अच्छा, और ये फ्रीबीज का जो कंसेप्ट चल रहा है, यस सर। तो ये मतलब कितना सही है? सर सर गरीब लोगों की अगर आप फ्रीबीज के द्वारा मेरिट गुड्स देके मदद कर रहे हैं तो सर वो सही है, लेकिन सर कई बार जो वित्तीय बोझ है वो सर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पे आता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी जैसे फ्री दी जाती है तो सर इसमें नफा भी और मुनाफा दोनों है सर। चलो ठीक, थैंक यू। Thank you. थैंक यू।